you the learning objective. So it's the second learning objective, which says express a number to a given number of significant figures. Mohit, can you see the screen? Yes, ma'am. All right. So today we will do the second learning objective. Express a number to a given number of significant figures. Okay, just like we do rounding off. So in the rounding off, we use place value, है ना? ऐसे ही होता है ना? When we round off, we say round off to nearest tens or hundreds or thousands. ठीक है? So this is also kind of rounding off, but instead of place value, we will look for the significant figures. Okay, so it's also kind of rounding off, but the significant figures will be used. So we will start with an example and then we will practice. Okay, you need to keep participating during the class so that I know if you can understand. Okay, the word is changed, the question is changed. The question is round off each of the following to the number of significant figures. ठीक है, सो इससे पहले आप जब भी राउंडिंग ऑफ करते थे तो आप राउंडिंग ऑफ हमेशा प्लेस वैल्यू पे करते थे. जैसे आपको मैंने बताया कि आप ऐसे करते थे, अगर 3720 है, सो यू नीड टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 फॉर एग्जांपल. सो आप राउंडिंग ऑफ हमेशा क्या करते थे, प्लेस वैल्यू के ऊपर. लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन आप दोनों पे राउंड ऑफ कर सकते हैं. समटाइम्स यू विल राउंड ऑफ to the place value given and sometimes you can round off to the significant figures they are asking for that. ठीक है, so let's solve first question together. So we will apply the rules we have learned yesterday to see how many significant figures are there in the question, and then we will round it off to the given significant figures. So first part mein, can you tell me how many significant figures are there in this first part, 8982? How many significant figures? Ji Moeed, how many significant Yes, figures ma'am. are there? How many Ma'am, there significant are figures? 4. 4 significant figures. ठीक है, so according to rule 1 there are 4 significant figures, but they are asking us to round it off to 2 significant figures. So we will take the first 2 significant figures. इनको तो रहना है, next को हमने round off करना है. इसका मतलब है हमने round off 9 के बाद करना है. ठीक है, so we will see the next digit to 9, that is 8. तो हम इसमें क्या करते हैं, because it is more than 5, so we will give 1 2 8 3 9. ठीक है, इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, लेट मी शो यू ऑन द वाइट बोर्ड ताकि हम थोड़ी वर्किंग करके इसको डिस्कस कर लें. ये बात आपने मुझे वही बताना है, बिल्कुल ध्यान से बेटे बात सुनिए ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, देन वी कैन प्रैक्टिस, यू नो. सो क्वेश्चन इज 8982 और हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अच्छा, यू टोल्ड मी जस्ट नाउ कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो हमने इसमें से चारों में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं और 2 को हमने राउंड ऑफ कर देना है. इसका मतलब है कि हमने इसको यहाँ से राउंड ऑफ करना है, यानी कि 9 से राउंड ऑफ 9 तक राउंड ऑफ करना है, क्योंकि ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं ना. तो दीज 2 आर एक्स्ट्रा, हमने इसको राउंड ऑफ करना है. सो नाउ वी विल यूज सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स से हमें क्या पता चला कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स और कितने रखने हैं. अब हमने राउंड ऑफ का रूल यूज करना है. हमने 9 को राउंड ऑफ करना है. So next digit is 8. So 8 is bigger than 5. So 8 will give plus 1 to this 9. Are you getting this point? So what will this 89 be after rounding off? 90. 90 बन जाएगा. ठीक है, so this 8982 turns into 99,000 and this is 2 significant figure. ठीक है, rounded off to 2 significant figures. अब आपको रूल 5 जो हमने कल सीखा था उसकी भी समझ आएगी, बिकॉज इट इज रिटन हियर इट इज 2 significant figures. सो इसका मतलब है ये दोनों significant है. ये जो अगले 2 जीरो है ना, ये राउंडेड ऑफ वैल्यूज हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट द रूल 5 इज. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. इज इट? Yes, ma'am. All right, very good. Now I'm writing the next number, 0.00601, 0.00601, and then it is 95. और हमने इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. आप पहले मुझे ये बताएं मोहित, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? There are 60195. There it is written. 0. Can you not see the screen, biche? Ma'am, 0.0060195. जी जी बेटे, 0.006099. 4 है पहले ही, तो फिर तो ये पहले ही आंसर ठीक है. 4 है. विच 4?
लाइक दीज 3 zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट, बाकी ये सारे सिग्निफिकेंट है। हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब है हमने इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इस 9 तक, ठीक है। सो बाकी सारा नंबर तो ऐसे ही रह जाएगा 0 0 6 0। अब देखो this is more than or equal to 5, so this will give plus 1 to this 9, so this 19 will change into 20, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ मोहित, ये 19 तो 20 हो गया, what if I write a 0 here, so will this be a correct answer if I write a 0 instead of 5, जैसे हम यहाँ पे करते हैं? should I write this 0 or not? No. why not? अगर 0 लिख दूं तो फिर क्या होगा? मैम वैसे सिग्निफिकेंट फिगर तो वही आएगा। अगर ये 0 ना हो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर ये 0 ना हो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है। और अगर ये 0 लिख दूं फिर भी 4 ही होंगे? नो 5। नहीं, फिर 5 बन जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपने ये याद रखना है कि दिस 0 ऑल्दो इट डज नॉट मैटर बिकॉज वी नो द 0 एंड एट द एंड ऑफ द डेसिमल इट इज नॉट गिविंग एनी मीनिंग टू द नंबर, लेकिन ये 0 लिखने से सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो जाएंगे। सो जैसे आप यूजुअली नंबर्स में करते हैं ना, आप जीरोस लिखते हैं व्हेन यू राउंड ऑफ, तो डेसिमल में यू शुड नॉट बी राइटिंग दिस 0 बिकॉज दिस 0 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। और ये फिर अभी भी अगर आप ये 0 लिख देंगे तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं लिखना चाहिए बिकॉज you want 4 significant figures. ये point clear है बेटे कि why we are not writing this last zero? ठीक है, very good. So now let's write down the next question. Next question is, so C part is, just let me write down the question first. 0.9999, 0.9999, and we need to round it off to 3 significant figures. So what to do? How many significant figures are there? पहले कितने significant figures हैं? Ma'am, there are 4 significant figures हैं. We need 3 significant figures. तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ तक round off करना है. Now this is very interesting question. इसका मतलब हमने इस 9 तक round off करना है because ये 3 significant है. Now if we round off till this 9, so this 9 will add 1, है ना? So this will be 0 and this will also be 0 because ये carry forward होता जाएगा. So this is the answer, है ना? Yes, ma'am. So, but how many significant figures are there in this question now, in this number? There are? Ma'am, there are 4. How 4 significant figures? But हमें तो उन्होंने कहा कि 3 significant figures लिखने हैं. इसका मतलब है what we will skip. हम क्या नहीं लिखेंगे? Ma'am, कैसे we लिखें? won't write 0. We won't write this 1 0. Although this is coming after rounding off, लेकिन Yes, because ये 0 0 1 हो गया तो ये significant बन गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.00, तब ये 3 significant figures आएगा. Yes, ठीक है? ma'am. So this is very important. अच्छा मोहित, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो जब आप इन बिगर क्लासेस व्हेन यू गो ना, तो ये आपके पास स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कम आते हैं, लाइक इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर वो इसको डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है डेसिमल्स का या परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसके आखिर में आपका एक आंसर आता है. लेट्स से आपका आंसर आता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, लेट्स से आपने परसेंटेज का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपका आंसर आता है 103,207. अब उसी क्वेश्चन में आपको कह देंगे करेक्ट योर आंसर, करेक्ट आंसर टू लेट्स से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये हर मैथ के टॉपिक में राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर उसके साथ मिलकर आ जाती है. जैसे ये क्वेश्चन मसलन परसेंटेज का था, आपने उसको सॉल्व करके ये आंसर निकाला है, ठीक है. अब लास्ट में उन्होंने कह दिया है कि इस आंसर को करेक्ट करें टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो फिर आप देखेंगे इस आंसर के अंदर टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने 3 पे राउंड ऑफ करना है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा 103,000. यानी आपने इसको इग्नोर कर दिया जो लास्ट में आपके पास ये 207 था, बिकॉज उन्होंने हमें क्वेश्चन में कह दिया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये किस तरह क्वेश्चंस आते हैं इसके, Yes, किसी भी ma'am. टॉपिक के साथ मिक्स अप होके सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है बेटे? So we are left with one more part and then we will solve more questions. So last part of this question is, I hope there is no D part. अच्छा ठीक है, there were 3 parts. अच्छा, now we can do this practice now questions. ठीक है? Question is round it off, same questions हैं. So you need to tell me, because I hope you are clear, और अब आप direct answer लिख लेंगे. What would be the answer of part A? 3 significant figures.
जी मोहित, हाउ Yes, मेनी ma'am. सिग्निफिकेंट फिगर्स? आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इसका? 3748, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है. व्हाट वुड बी द आंसर? 3,700, हम्म 375. 375 375 Uh, 375 बस? ma'am, जीरो आल्सो? जीरो मैम आल्सो ये ना बेटे? सारे जीरो का ऐड करते हैं. देखो, जब जब ये होल नंबर होता है ना, होल नंबर में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना. होल नंबर्स में जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. तो ये जीरो लिख भी देंगे तो ये जाहिर है आप जीरो मिस नहीं कर सकते ना. हाउ कैन यू राउंड ऑफ 3748 टू 375? ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे. यू आर राउंडिंग इट ऑफ ना. तो राउंडिंग ऑफ का तो ये मतलब है नियरेस्ट होल नंबर्स पे, नियरेस्ट टेंस पे, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे जाना. तो यू विल राइट डाउन दिस जीरो. लेकिन अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल यही नंबर होता और ये होता लेट्स से 3.748, यानी डेसिमल नंबर है. अब इसमें अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे ना 3 सिग्निफिकेंट पे, तो यू विल नॉट राइट डाउन द लास्ट डेसिमल, लास्ट जीरो. इसको आप लिखेंगे 3.75. ये जीरो आप नहीं लिख सकते बिकॉज अगर आप लिखेंगे तो ये फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. ठीक है, आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है तो यू विल नॉट राइट दिस जीरो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये फर्क है डेसिमल और होल नंबर में. होल नंबर्स में यू कैन राइट डाउन द जीरो बिकॉज हमने पढ़ा है ना इन लास्ट रूल 5 में कि लास्ट जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. सो इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है. क्यों नहीं है, कैसे पता नहीं है? बिकॉज इट इज रिटन ना इट्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब ये लास्ट राउंडेड ऑफ डिजिट है, इसकी कोई ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है बेटे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू रूल Yes, ma'am. 5? ठीक है, सो नाउ टेल मी द सेकंड वन. 4971 to 2 significant figures, what would be the answer? 50 को राउंड करके आ गया तो it will be मैम 5 Hmm. 50 तक 5 वो राउंड कर दो. 50 हो 500 जाएगा. 5 कितने 500. जीरोस? 500 कितने जीरोस हैं? देखिए मैम ना, यहाँ आपने पे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है. 2 सिग्निफिकेंट, उससे अगला डिजिट देखेंगे बिकॉज राउंड ऑफ करें तो दैट इज मोर 7. देन, प्लस 1 करेंगे तो 49 विल बिकम 50 और इन दो डिजिट्स की जगह वैसे ही जीरोस आ जाएंगे. और अब देखिए, आप ये सोचें कैसे हमें पता है? इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ लिखा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और ये रूल 5 है. रूल 5 कहता है कि ये 3 जीरोस में से कोई जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है और कोई जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता. तो इन 3 जीरोस में से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. Are you getting the point? That's why it is written 2 significant figures. ठीक है, ये रूल 5 है. रूल 5 में हम लिखते हैं कि कितने नंबर्स सिग्निफिकेंट है. ठीक है, सो दिस विल बिकम 5000. ठीक है बेटे, सो Yes, मूविंग ma'am. ऑन टू बी पार्ट. बी पार्ट में देखो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर अब्दुल मुईद? इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 0.00470989. मैम नंबर जी, एक मिनट स्क्रीन देख लूं. 0 1 2 3 4 5 6. 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. वेरी गुड, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. हमने राउंड ऑफ करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसका मतलब है लास्ट वाले दो हमने छोड़ने, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है. ठीक है, अब बिकॉज देयर इज अ 9 के आगे देयर इज अ बिगर नंबर बिगर देन 5, सो दिस 9 विल बी हैविंग +1. तो ये क्या आंसर आ जाएगा? इसका क्या आंसर बन जाएगा मोहित? तो इसका आंसर बन जाएगा हम्म 1 2 3 7 7000 7 0 0.7 0.0047. और ये 09 क्या बन जाएगा जब +1 हो जाएगा? क्या बन जाएगा बेटे? दिस 8 विल गिव +1 टू दिस 9, सो ये आपके पास ये बन जाएगा, है ना? 0.004710. ठीक है, 10 कैसे बना ये? अभी तक मुझे इसमें कंफ्यूजन होती रहती है, ये जब राउंडिंग करते हैं कंफ्यूजन. सिग्निफिकेंट. अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तक आपको बात क्लियर है ना? कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने राउंड ऑफ करना है और इसमें 6 हैं.
इसका मतलब है ये लास्ट दो वाले डिजिट्स आपने राउंड ऑफ करना है, यानी इनको खत्म करना है। अब डेसिमल है ना, तो जीरो लिखे नहीं जाते, ये खत्म हो जाते हैं जीरो, ये दोनों नंबर खत्म हो जाएंगे। अब ये यस खत्म मैम। होने से पहले हमने ये देखना है कि ये 9 में 9 9 रहेगा या 10 बनेगा। कैसे पता चलता है? अगला डिजिट अगर बगर, इफ इट इज बिगर और इक्वल टू 5, तो इट विल गिव +1 टू दिस, है ना? ये तो आपको पता है। अब ये 8 था तो इसने 9 को +1 दिया, 9 था तो ये 10 बन गया बिकॉज ऑफ द कैरी। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लास्ट वाला जीरो है डेसिमल्स में, ये सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं होता? जीरो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 या 4? 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे ये जीरो लिखना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेसिमल्स में लास्ट का जीरो इज मेकिंग द डेसिमल मोर एक्यूरेट, ये हमने उस दिन बात की थी। ठीक है बेटे। अच्छा, नाउ द डी पार्ट, लास्ट पार्ट, इसको दो दफा सिग्निफिकेंट करना है। 0.00999, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट पे पिक करना है और 3 पे। लेट मी राइट इट डाउन इन द व्हाइट बोर्ड। सो द क्वेश्चन इज 0.09, 0.0 एंड द 4 9s। ठीक है, हमने इसको पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित, आप मुझे बताएं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द क्वेश्चन? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमने इसको राउंड ऑफ करना है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यस मैम। 4 है और हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 पे। इसका क्या मतलब है? किसका मैम? यानी इसका क्या मतलब है, हमें 2 चाहिए ना। लेट मी चेंज यस द मैम। कलर। इसका मतलब है कि वी नीड 2, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सो दिस 9 इज गोइंग टू बी देयर। अब 9 से ये दोनों तो चले जाएंगे, ये दोनों 99 लास्ट वाले। अब हमने ये देखना है कि ये जाने से पहले इस 9 को +1 करेंगे या नहीं करेंगे। सो व्हाट डू यू से, करेंगे या नहीं? करेंगे। करेंगे, तो देयर इज +1 हियर। अब आप जब इसको +1 करेंगे तो दिस 9 विल बिकम 10, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी आएगा, ये फिर 10 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आता है। अब आपने ये देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका राउंड ऑफ के बाद आंसर आता है। अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैम इसमें 4। नहीं, ये तो नहीं है ना सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें उन्होंने कहा था 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब है कि हम इस एक जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, हम इसको लिखेंगे 0.10। सो दिस इज द आंसर इफ यू राउंड ऑफ 0.09999 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ठीक है, बिकॉज ये दोनों सिग्निफिकेंट है ना। ठीक है बच्चे, अब हम इसी नंबर को लिखेंगे दोबारा, और इसको अब हमने, ये थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, इसको थोड़ी बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रूल्स का मिक्स अप नहीं करना। इसी नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना। दे आर आस्किंग यू टू डू इट to 2 significant and to 3 significant. अब 3 significant पे राउंड ऑफ करना है, हमें पता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, है ना। सो अब 3 पे राउंड ऑफ करना है मोहित, तो कौन से वाले 9 तक राउंड ऑफ करना है? इस 9 तक, क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट है ना, 1 2 3। यस आर मैम। यू गेटिंग द पॉइंट? यस सो मैम। इससे अगला डिजिट हमने देखना है, इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे कि विल इट गिव +1 टू दिस 9 और नॉट। सो व्हाट डू यू से, विल इट गिव +1? यस। यस, इट विल गिव। अब अगर आप इसको ऐड करें तो दिस 9 + 1 विल बिकम 0 and 1 carry. It will again become 10 और 1 carry. Again it will be 10 and this will be the answer. अब अगर आप गौर करें तो इसमें राउंड ऑफ तो हो गया है, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी तक 4 हैं, तो हमें तो 3 सिग्निफिकेंट चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.100, ताकि ये 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आ जाए। ठीक है बेटे, इज इट कंफ्यूजिंग और इज इट क्लियर? इट इज क्लियर। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसके लास्ट दो जो रूल है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के, लाइक वन इज फॉर डेसिमल, अदर इज फॉर होल नंबर, सो दैट समटाइम कंफ्यूजेस यू, लेकिन विद द प्रैक्टिस यू विल बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस, बल्कि नहीं, इसको अभी रहने देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम हम तब देखेंगे जब आपके पास इसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 12 टुडे, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 5A का, लेट मी शो यू द क्वेश्चन नंबर 5A का हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो आई वांट यू टू थिंक एंड आंसर। ठीक है, सो what would be the answer of first question? 728, two significant figures. पहले मुझे ये बताएं, how many significant figures are there?
अच्छा मोहित, शुड वी डू इट ऑन द व्हाइट बोर्ड और यहीं पे कर लें सॉल्व इसको? यहीं पे कर व्हाइट लेते बोर्ड हैं, पे करना छोटा है? सा यहीं पे कर लेते हाँ हैं। ये वाला छोटा सा, ये वाला छोटा है। अब मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा। होल नंबर है, होल नंबर में लास्ट जीरो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता भी है कभी नहीं भी होता, तो लिख भी सकते हैं। सो 728 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? 2 सिग्निफिकेंट पे करना है, इसका मतलब दिस 2 विल बी अंडरलाइन, है ना। अब आपने ये देखना है कि 8 तो 0 हो जाएगा, लेकिन विल 8 गिव +1 टू दिस 2 और नॉट? Yes, my mate will give it. So then what will be the answer? 700 and The answer will be 730. 30, ठीक है, 730। अच्छा, अब आपके ज़हन में वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये जीरो हमने क्यों लिख दिया, बिकॉज दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। हमने लास्ट रूल में पढ़ा है ना कि लास्ट में होल नंबर्स के आखिर पे जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मुझे पता है ये 2 सिग्निफिकेंट 7 और 3 है, तो जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल 5। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, ये सी पार्ट। तो पहले मुझे वही ये बताएं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द क्वेश्चन? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सी पार्ट में बच्चे? मैम वो नंबर नजर नहीं आ रहा। ऐसे क्यों हो रहा है? अब नजर आ रहा है? मैंने थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया। यस मैम अब आ रहा 0.00 0.00300195 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? है। 1 2 3 4 5। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वेरी गुड। अच्छा नाउ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने 4 पे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब आई नीड टू अंडरलाइन दिस 9, यहां तक मैंने राउंड ऑफ करना है, देन 5 विल बी गॉन। ठीक है, अब डेसिमल है तो 5 तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल में जीरो नहीं लिखते, जीरो सिग्निफिकेंट बन जाता है। अब हमने 5 को खत्म करना है, ट्रिम करना है, लेकिन मुझे ये बताएं कि 5 + 1 9 को देगा या नहीं देगा? यस मैम। जी मोहित, 5 को 1 हमने खत्म कर देना है, तो विल इट गिव +1 to 9? यस मैम इट विल। So what would be the answer then? ये 19 will become 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 and 0.3। 0.003020। ठीक है, अब एक बार काउंट कर ले सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप देखें ये चारों सिग्निफिकेंट है 3020। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डेसिमल नंबर, और डेसिमल में हमें पता है लास्ट वाला जीरो इज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, होल नंबर्स में सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता, लेकिन जो डेसिमल्स है उनमें लास्ट वाला जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है बेटे, इज इट क्लियर? यस ऑलराइट, अब इसको देख लेते हैं ई पार्ट को। 9.9999 मोहित, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैम इसमें है मैम ये वाला निकाल नहीं लिया। नहीं 5 ये मैम। अभी 5 है। अच्छा, आपने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट पे, तो इसका मतलब है ये वाला 9 अंडरलाइन होगा, इससे आगे वाले 9 मुझे खत्म करना है। सो मुझे ये बताएं, विल दिस 9 गिव +1 टू दिस और नॉट? इट विल। यस मैम। यस मैम। सो देन व्हाट वुड बी द आंसर? अच्छा, अब हम यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? 9 + 1 10, 1 कैरी, सो 9 + 1 10 अगेन, सो दिस 9 अगेन देयर इज अ कैरी, so this is also 10। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं इसमें आंसर में? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द आंसर? 10.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? वही जल्दी जल्दी बेटे आंसर करें ना। मैम देयर आर 5 5 5 क्यों significant। है इसमें? 10.00 में यस इसमें तो 4 डिजिट है ना। यस कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? चारों ही सिग्निफिकेंट है, बिकॉज डेसिमल्स में जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मुझे तो 3 चाहिए, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 10.0, ठीक है, ताकि इसमें यस मैम। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। ठीक है बेटे, यस मैम। इज इट मेकिंग सेंस या अभी तक कंफ्यूजिंग है? नो मैम अब कंफ्यूजन हट गया। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे जल्दी जल्दी ये वाले आंसर बताएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कंफ्यूजन हट गई है। डी पार्ट हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, बिकॉज 2 दफा राउंड ऑफ करना है। बी पार्ट में क्या होगा? पहले मुझे ये बताएं मोहित, बी पार्ट में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? और डी पार्ट में नहीं, बी में, बी 503.98। 5। 5 सिग्निफिकेंट है, हमने 4 पे राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब है दिस 9 विल बी अंडरलाइन, ये 4th सिग्निफिकेंट फिगर है ना। अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, 8 है, सो विल इट ऐड 1 to 9? इट विल।
इट विल गिव 1 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 9। ठीक है, अब आपने देखे ये क्या बन जाएगा, 9 + 1 10 बन जाएगा, 0 पॉइंट, तो देयर वुड बी अ कैरी हियर, सो दिस इज 504। अच्छा मोहित, आप मुझे ये बताएं इस 504.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट है। डेसिमल्स में लास्ट वाला 0 इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, मैंने आपको ये रूल 3 है, आई थिंक सो रूल 4 है। ठीक है, डेसिमल्स में जो लास्ट पे 0 होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आपने इसको राउंड ऑफ करना था 503.98 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, और आपने आंसर लिख दिया फॉर एग्जांपल 504, सो विल यू गेट मार्क्स? No. नो। व्हाई? बिकॉज ये आंसर तो गलत है, ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और हो सकता है आपने इसको सही निकाला, लेकिन आपने ये सोचा कि 504 और 504.0 एक ही तो बात है, ये भी तो वही है 504, ये भी 504 है। लेकिन आपने याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे हम कहते हैं ना 504.0 आंसर आ रहा है, तो हम ये लास्ट वाला 0 नहीं लिखते, हम उसको 504 लिखते हैं नॉर्मल मैथ्स में। लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो आपने बहुत केयरफुल होकर डिजिट्स लिखना है। ठीक है, अगर आप ये लास्ट वाला 0 नहीं लिखते तो ये आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, और ये लिखते हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि डेसिमल्स लास्ट वाले कहीं और पे मैथ्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये डेसिमल्स जो मीनिंगलेस जिन्हें हम कहते थे ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाते हैं। ये बात समझ आ रही है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा नाउ मूविंग ऑन टू दिस एफ पार्ट। 8.004 मोहित, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 8.004. 4। All of कितने them. सिग्निफिकेंट? Or ऑल ऑफ देम 4 सिग्निफिकेंट। हमने 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करना है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमने इसको राउंड ऑफ करना है। आप मुझे ये बताएं नेक्स्ट इज 4, सो 4 इसको +1 देगा या नहीं? no, no. नो, तो द आंसर वुड बी 8.00। आप देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8.00 में? इसमें मोहित कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8.00? The three. 3 सिग्निफिकेंट है। अब देखो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि मैं इसको 8 लिख दूं, बिकॉज अगर आप इसको 8 लिखेंगे तो इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप इसको 8.0 लिखते हैं तो इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आपने तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना, तो ये दोनों आंसर गलत होंगे। ऑल दो आप मैथमेटिकली देखो तो 8 और 8.0 और 8.00 बात तो सेम ही है ना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये तीनों चीजें डिफरेंट है। तो आपने इसको 8.00 लिखना है ताकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Yes, ma'am. So now let's solve this D part 6396। क्वेश्चन है 6396 और हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट पे भी और 3 सिग्निफिकेंट पे। और 2 सिग्निफिकेंट पे पहले करते हैं। जी मोहित, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द क्वेश्चन? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर के पास? 6396। 4. कितने सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट। अब देखिए हमने 2 पे राउंड ऑफ करना है, तो वी विल अंडरलाइन 3। इससे आगे वाले नंबर्स को हमने खत्म करना है, तो इससे नेक्स्ट इज 9। विल दिस ऐड 1? 9 Yes. प्लस करेगा? यस। Yes. तो दिस विल बी 6400। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर डेसिमल होता तो हम ये जीरोस ना लिखते, लेकिन बिकॉज इट इज अ होल नंबर तो ये जीरोस आते हैं, और इसके आगे आप लिख देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बता रहा है कि ये दोनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बिकॉज ये हो भी सकते हैं इंपॉर्टेंट, नहीं भी हो सकते। तो इस केस में ये दोनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बेटे, नाउ द सेम क्वेश्चन बट वी नीड टू राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट। अब आप मुझे एक बार आंसर बताएं 6396 तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। सो क्या आंसर होगा मोहित? इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। कैन यू टेल मी द आंसर डायरेक्टली नाउ? 640. 640 एंड व्हाट अबाउट दिस 6? इसकी जगह 0 आएगा? 6400। ठीक है, लेकिन इस दफा हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया है। अब देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस क्वेश्चन में ये दोनों आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका मतलब ये दोनों जीरोस क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये तीनों सिग्निफिकेंट है, और ये जो एक जीरो लास्ट वाला ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल 5 होल नंबर्स में जो लास्ट पे जीरोस होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट होते हैं और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है बेटे, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी? एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ठीक है, अच्छा मोहित, अब हमने क्या करना है, हमने एक क्वेश्चन करना है। हमारे पास वर्कशीट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम सैटरडे को करेंगे। देयर आर 2 वर्कशीट्स। ठीक है, अभी हम क्या करने लगे हैं, हमारे पास करिकुलम में अगर हम देखें तो हमने कुछ और क्वेश्चंस भी करने हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने करने हैं
देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन करना है. हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15. सो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 करना है. किधर गई? वेयर इज द बुक? द बुक इज क्लोज्ड. नहीं, ये बुक है. अच्छा, हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 12, 13, 14 एंड 15. ठीक है, 12 इज ऑलरेडी मार्क्ड, 13, 14 एंड 15. सो ये भी हमने करना है, 13, 14 एंड 15. ठीक है, सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स, वी नीड टू सॉल्व देम, अंडरस्टैंड देम. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि द नंबर 143,000 इज करेक्टेड टू x सिग्निफिकेंट फिगर्स. हमें नहीं पता कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ये राउंडेड ऑफ है. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट the number of possible values of x. so ये इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? इसमें रूल 5 यूज हुआ है. होल नंबर्स में लास्ट वाले जीरोस कभी सिग्निफिकेंट होते हैं और कभी नहीं होते. जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया है, तो उसमें आपने देखा है जब हमने 2 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ किया है तब भी आंसर सेम था, और 3 पे किया है तब भी सेम है. सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग यू, कि किन के ऊपर किन किन नंबर्स, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, किन किन नंबर्स पर इसकी वैल्यू सेम होगी. जी, सो आप मुझे बताएं अब्दुल मुईद कि किन किन नंबर्स पे ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है. 143,000 कितने सिग्निफिकेंट? 143,000, 143,000. सो कौन कौन सी सिग्निफिकेंट वैल्यूज पे ये राउंड ऑफ हो सकता है? आप मुझे बताएं मुईद, व्हाट आर द पॉसिबल सिग्निफिकेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. किस किस पे राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर को, तो यही आंसर आएगा. आपको क्वेश्चन समझ आया मुईद? Yes, ma'am. ठीक है, दे आर आस्किंग यू, हमेशा इसके सामने लिखा होता है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अभी नहीं लिखा हुआ. दे आर सेइंग इट इज राउंडेड ऑफ टू x सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि बहुत से x की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. जैसे पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया, उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी आंसर वही आता है और 3 सिग्निफिकेंट पे वही आंसर. तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x? कितने, पहली वैल्यू क्या होगी x की? कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो सकता है? देखो एक ही हो सकता है कि ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, लेट मी राइट डाउन अगेन हियर. एक ये हो सकता है कि 143,000 में ये तीनों सिग्निफिकेंट है और ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है. तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आएगी? 3. ठीक है बेटे, ये बात समझ आ रही कि ये तीन ही सिग्निफिकेंट है और ये तीनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है. इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी. वही तो आपको ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये एक जीरो सिग्निफिकेंट हो और ये जो दो लास्ट जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट हो. ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट. देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब आप एक और काम कर सकते हैं. अगर आप कहें आउट ऑफ दीज 3 जीरोस 2 जीरोस आर सिग्निफिकेंट और ये एक ही जीरो है जो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये सारे सिग्निफिकेंट, तो अब आप देखें x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है. यानी इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ठीक है, और लास्टली आप क्या कर सकते हैं कि आप कहें कि ये सारे सिग्निफिकेंट है, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है. ठीक है, और कुछ भी नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6. इसका मतलब है कि यू कैन राइट डाउन हेंस possible values of x are कौन कौन सी है? 3, 4, 5 एंड 6. मोहित, इज इट मेकिंग सेंस? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं. तीनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट, 1 जीरो सिग्निफिकेंट, 2 जीरो सिग्निफिकेंट और ऑल द 3 जीरोस आर सिग्निफिकेंट. ये पॉसिबल आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 के. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 12. ठीक है, आप क्वेश्चन 13 को देखें जरा. क्वेश्चन 13 आपका क्या है? लेट मी देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन वर्ड प्रॉब्लम्स को बेटे ध्यान से देखना है, इनको समझना है कि क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज द फ्लोर एरिया of Dolmen City in Karachi, Pakistan is stated as 320,000 meters square. This value has been rounded off to 3 significant figures. What is the largest and the smallest possible value of the area? अब उन्होंने देखो हमें क्या बताया. उन्होंने कहा है एक डॉल्मन सिटी का जो एरिया है वो है 320,000 मीटर स्क्वायर और इट इज राउंडेड ऑफ टू 3 significant figures. Rounded off to 3 significant figures. So हमने ये बताना है कि what is the possible smallest value and what is the largest value.
What is the smallest possible value and what is the largest possible value? इस तरह के क्वेश्चन आपने तब भी किए होंगे जब आपने राउंडिंग ऑफ की होगी कि ये नंबर राउंड ऑफ हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस पे, 3 सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू? पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं। क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी? 320,000 राउंड ऑफ हुआ है, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी बेटे? कैन यू थिंक, कैन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ पजल्स और डू यू नीड माय हेल्प इन दैट? वो क्या स्मॉलेस्ट नंबर होगा? यू नीड हेल्प? यस। देखिए कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा मोहित जिसको राउंड ऑफ करें तो 320 बन जाए? यहाँ पर क्या चेंज हो सकती है, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है? देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर आ सकता है 319, लेट्स से 600, तो ये 6 जब आप यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं तो ये 6 इसको +1 कर देगा ना, तो ये 320,000 बन जाएगा। ये सोचना है हमने, ठीक है? तो ये 320,000 से छोटी वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर 5 भी तो आ सकती है। 5 विल ऑल्सो वर्क। यहाँ पर 5 होगा तो वो भी 9 को +1 कर देगा, लेकिन 4 नहीं आ सकती बिकॉज 4 इज स्मॉलर, तो 4 इसको 19 ही रख देगा, ठीक है? तो इसका मतलब है ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं ना तब आप करते हैं, शायद आपने किए भी होंगे, जब राउंड ऑफ करते हैं ना तब वो इस तरह के क्वेश्चन आपको सिखाते हैं कि क्या राउंडेड, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है। राउंडेड ऑफ फिगर का मतलब है आपने एस्टिमेशन यूज किया है, तो उस एस्टिमेशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी? अब इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 319,500। मोहित ये स्मॉलेस्ट वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये वो सबसे पहला नंबर है, इससे छोटा नंबर अगर आप करेंगे ना, यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 इस 9 को 10 नहीं बनाएगा ना, ठीक है? सो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, व्हाई? बिकॉज दिस 5 विल गिव +1 टू दिस, और इसको अगर आप राउंड ऑफ करें, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट, तो ये +1 कर देगा और इसका आंसर आ जाएगा 320,000। ये बात समझ आइए? ठीक है मोहित, ये बात समझ आइए या नहीं? ये थोड़ा और एक्सप्लेन करूं किसी एग्जांपल के साथ, इज इट क्लियर? ठीक है Yes. अच्छा, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू लिखते हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ आए। अच्छा, अब आपके ख्याल में व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू? इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी जो आपको राउंड ऑफ करने पे 320,000 दे? अब देखो लार्जेस्ट वैल्यू में भी आपने इसी तरह सोचना है, स्मॉलेस्ट में हमने शेयर करके की, लार्जेस्ट में हमारे पास क्या लार्जेस्ट वैल्यू आएगी? देखिए 320 तो रहेगा बिकॉज लार्जेस्ट वैल्यू है। यहाँ पर अगर मैं 400 लिखूं तो ये आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करने पर इसको खत्म कर देगा बिकॉज दिस 4 इज स्मॉलर देन 5, इट विल नॉट गिव एनी शेयर टू 0, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 324 की जगह अगर मैं 500 करूं तो देन दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज ये 0 है और नेक्स्ट डिजिट इज 5, तो दिस 5 विल गिव 1 और ये आपके पास आंसर बन जाता है 321,000। तो ये नहीं हो सकता। सो दिस इज द लास्ट नंबर व्हिच कैन गिव यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? ठीक है बेटे, इज इट मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। अच्छा, अभी ना इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने ये पिछली क्लासेस में एग्जांपल, ये सबसे छोटा नंबर है विच विल बी राउंडेड ऑफ, ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है? इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे देखो इसकी समझाने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे देखो अगर मैं आपको कहूँ कि एक नंबर था जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो मेरा आंसर आ जाता है 300। मोहित अब आपने ध्यान देना है, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमें पता चलता है लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो एग्जांपल क्या है कि आपको एक राउंड ऑफ किया आपने एक नंबर को हंड्रेड्स पे, तो आपका आंसर आया 300। अब आप मुझे बताएं कि सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है जिसको राउंड ऑफ करें तो आंसर 300 आए, और सबसे स्मॉलेस्ट लिखना चाहिए व्हाट इज द बिगेस्ट वैल्यू जिसका राउंडेड ऑफ आंसर हंड्रेड्स पे ये आता है। अब आप मुझे बताएं सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 300 आंसर आएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर राउंडेड ऑफ टू हंड्रेड्स विल गिव यू 300? सबसे छोटा नंबर क्या होगा? छोटा नंबर मैम हो जाएगा 250। 250, ठीक है? सबसे छोटा नंबर 250 है, वेरी गुड। सो ये यहाँ पर भी हमने यही किया, आपने गौर किया, जैसे इसको हमने एक डिजिट कम किया 3 को और इसको हमने 50 बनाया, तो यहाँ पर भी हमने असल में यही किया। 320 था, इस 200 को हमने क्या लिख दिया? 195। अब आपको समझ आ रही है? 200 को 195 लिखा है जिस तरह आपने 300 को 250 बनाया, ठीक है? अब देखिए now what is the biggest value, what is the largest value which is rounded off to 300? लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी 300 तो रहेगा। यहाँ पर जीरो जीरो की जगह पे क्या सबसे बड़ा नंबर आ सकता है जिसने इसको 4 नहीं करना, 3 रखना है बस। अगर देखो यहाँ पर मैं 3 के बाद 5 डालूंगी तो ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज ये 5 इसको +1 कर देगा, ऐसा ही है ना? तो मुझे यहाँ पे 3 के साथ क्या डालना है, क्या सबसे बड़ा नंबर आ सकता है? 4 आ सकता है ना?
तो वी कैन से 340 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको हम राउंड ऑफ करें तो वो 300 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आई हैव दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये वो जो दो नंबर है ये आपकी बुक के आंसर पे, लेकिन अगर आप थोड़ा इसको ज्यादा सोचें तो 340 राउंड होके 300 आता है, 349 भी तो राउंड ऑफ होगा तो क्या होगा, राउंड ऑफ होगा तो 300 ही आएगा। सो ये 40 की बजाय 49 भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने, आपकी बुक ने तो कहा है कि 320 400 इज द आंसर, लेकिन यहाँ पर 400 की जगह पर 499 भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना नंबर, इंपॉर्टेंट नंबर है कि जीरो के बाद क्या आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ उधर ही होंगे। Are you getting the point? ठीक है। So, but this is also fine if you go till this point. बेटे, is this point clear? इस सिंपल एग्जांपल से ये बात समझ आ रही है ना? जब Yes, किसी भी ma'am. राउंडेड ऑफ नंबर को स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं तो as you told me कि it is 250. So smallest is this and the biggest is 340. 349 can also work. ठीक है? So I hope this is clear. Yes, ma'am. थोड़ा tricky